Ladies and gentlemen, we are coming to the end of our this month course, and today we will be having the final touches to our parts of speech and idioms plus composition. The basic purpose of grammar is to compose, to have composition which is correct, appropriate and effective. Correct grammatically, factually, and also effective, plus it should be appropriate. These are the three important dimensions of language. So please write a comment. The comment should be that my language must be grammatically, factually and logically correct, comma, effective and appropriate. These three words you have to write on your study room. If I am audible and visible, so please like this video broadcast, share it in 3 WhatsApp groups and save to, plus write a comment that my language must be grammatically, factually and logically correct, comma, effective as well as appropriate. Can you write this comment? This is our basic purpose of this lecture today. Who understood the comment? It is a little complicated, but let us give it a try. Thank you for sharing. I received the notification. My language must be correct grammatically, factually and logically, comma, effective and appropriate. This is the challenge. Maha Arai, my language must be grammatically, factually and logically correct, comma, effective and appropriate. Chaudhary Sikandar, correct, effective as well as appropriate, correct. Haneem Khan, okay. Thank you Neelam Akbar and everybody who is sharing it. You share it, don't wait that somebody else will be doing or somebody has done, why should I do? Just do your part. So number one, language must be correct. Write it, correct. Now correct means grammar, facts, logic. This is the mental part, the brain part. Not only writing, every type of language. ज़बान जिस भी शक्ल में हो, वो लिखने की शक्ल में हो या बोलने की शक्ल में हो, उसमें 3 खुसूसियात होनी चाहिए. 3 खुसूसियात. एक खुसूसियत जो है वो क्या है? वो सही होनी चाहिए, सही. अब सही का मतलब क्या है? कि उसका ग्रामर भी सही हो, उसके अंदर फैक्ट्स हो और लॉजिक हो, मतलब कि वो दिमाग उसको कबूल करे. अब एक गलत ग्रामर जिसमें फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स के खिलाफ चीज़ है, झूठ है, लाइज है, लॉजिक नहीं है, मतलब कन्विंसिंग नहीं है, तो लोग उसको नहीं पढ़ते. लेकिन साथ साथ फिर इफेक्टिव मीन्स इमोशंस, जज्बात, दिल, मतलब मुअस्सर भी हो, इफेक्टिव, उसका कोई असर भी हो.
कुछ बड़ी लॉजिकल चीज़ें होती है, फैक्चुअल चीज़ें होती है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होती है, लेकिन उसका असर नहीं होता। सो इफेक्टिव, इमोशंस, इन्फ्लुएंस, उसका कोई असर हो, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जिसको कहते हैं इम्पैक्ट, मतलब पढ़ के कोई मज़ा भी आए, कोई टेस्ट हो, कोई असर छोड़े, कोई असर हिलाए, हाँ जी क्या बात है जी, इफेक्ट। एंड नंबर 3 इज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन्स कॉन्टेक्स्ट, रिलेवेंसी, situation, so that is called appropriate. So language must be 3 characteristics: correct, number 2 effective. Please write it. Language must be, whether writing or speaking, correct, effective and अप्रोप्रिएट। अब एक बंदा मर गया है, सामने जनाजा पड़ा है, बंदा मरा हुआ है, और तुम उधर से जो है बड़े काक़े लगा रहे हो, लतीफ़े सुना रहे हो, और करेक्ट भी हो और इफ़ेक्टिव भी है। लोग कहते हैं यार ये मुनासिब नहीं है, यह बंदा मरा हुआ है, थोड़ा सा गमगीन बनो, कोई रोना धोना करो। हालांकि वो बड़ी करेक्ट चीज़ है, इफ़ेक्टिव भी है, तो इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट, मौका की मुनासिबत से। ठीक है ना, बंदा शादी है या कोई और खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पे जी तुमने जो है ना वो रोना धोना, ओ जी मेरा ये हो गया तो वो हो गया, तो मेरा तो मर गया, तो मैं तो हलाक हो गया, तो जी लोग कहेंगे यार क्या है। हो सकता है ठीक आप कह रहे हो, आपकी बात सही हो, लेकिन वो खुशी का मौका है, वहाँ खुशी की बातें करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो। सो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज मस्ट बी करेक्ट, इफेक्टिव, एप्रोप्रिएट। ओ जी आपका करंट अफेयर्स का पेपर है, आप करंट अफेयर्स लिख रहे हैं, अपनी कहानियाँ जो है ना किसी और चीज़ की लिखनी शुरू की, तो बेशक आपकी बातें सही हो, ग्रामर भी ठीक है, मौका की मुनासिब नहीं है, ये करंट अफेयर्स है, ये कोई नावल नहीं है। तो ये अपने स्टडी रूम में मोटा मोटा लिख के, दैट माई लैंग्वेज मस्ट बी करेक्ट, इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट। करेक्ट का क्या मतलब है? ग्रामर, फैक्ट्स, लॉजिक। अब सिर्फ ग्रामर के करेक्ट नहीं है, अगर उसमें आपने कोई इलॉजिकल बात की है, झूठ बोला है, तो वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ ग्रामर की सेहत नहीं, साथ उसमें लॉजिक भी हो और उसमें फैक्ट्स भी हो। फैक्ट का मतलब साइंस, साइंटिफिक चीजें हो, क्लियर चीजें हो, फिलॉसफी। लॉजिक का मतलब है कि वो दिमाग को लगे। इफेक्टिव का मतलब है इम्पैक्टफुल, उसका कोई इम्पैक्ट हो। अब इम्पैक्ट कहां से आता है? इम्पैक्ट आता है फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है करेक्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, इफेक्ट आता है फिगर्स ऑफ स्पीच से। प्लीज राइट इट। करेक्ट लैंग्वेज कम्स फ्रॉम parts of speech and effect comes from figures of speech. Simile, metaphor, synecdoche, personification, paradox, antithesis, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्सेज में। आज हमारी आखिरी क्लास है इस कोर्स का। अभी हम आपको टाइम देंगे तो आप मंथली एग्जाम की तैयारी करें आराम के साथ। डेली आपका राइटिंग चेकिंग होगा। क्लासेस मेरी क्लासेस नहीं होंगी, ताकि आप आराम से जो हमने काम किया है, इतनी ईडियम्स, एडजेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें जो है आप उसको
तरीके से तैयार करके मंथली एग्जाम के लिए आप रेडी हो. देयर विल बी नो एग्जाम टुमारो वीकली. देयर विल बी ओनली वन एग्जाम ऑन 3rd of May विच विल बी मंथली एग्जाम. जितना इस महीने में आप लोगों ने पढ़ा है उन सब का पूरा एक 3 घंटे का एग्जाम होगा. So rhetorical devices, figures of speech, effect, organization. अब साइंस में तो आप फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं लिख सकते. करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में तो आप ये प्रोवर्ब्स, कोटेशंस या ईडियम्स, सेमिलीज, तशबीहात वगैरह, शायरी, ये तो इतना कोई नहीं लिखता, न लिखना चाहिए. तो वहाँ इम्पैक्ट कैसे बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपके खूबसूरत प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव, ताकि उसका असर हो एग्जामिनर पे. ऐसे में, लिटरेचर में, अदब में आप ईडियम्स डाल सकते हैं, प्रोवर्ब्स डाल सकते हैं, कोटेशंस डाल सकते हैं. लेकिन साइंस में अब करंट अफेयर्स भी साइंस है, पाकिस्तान अफेयर्स भी साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, ये सारी साइंसेज है. साइंस का मतलब ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक नॉलेज है. आर्ट जो है उसमें जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनाइज हो. जिसको मैं समझाता औरत, वो अनन्नास लिख ली. लोग समझते कि कोई अनन्नास है, वो औरत निकल जाती है. तो आर्ट में एसिमेट्री इज द ब्यूटी समटाइम्स. ठीक है ना. अब एक लड़की है या एक लड़का है, बड़ी खूबसूरत उसकी आंखें हैं, बड़े बड़े, ये वो, नाक शाक सारा बराबर है, इसको सिमेट्री कहते हैं. तो इस तरह की तस्वीर कौन देखता है? अब उसका जो है ना, एक तस्वीर आप बनाते हैं, उसमें एक कान इतना है और दूसरा कान छोटा है, तो हर कोई उसको देखेगा, हाँ यार ये कैसी चीज़ है. तो आर्ट में जो है सिमेट्री ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्री उसमें हो. SYMMETRY, सिमेट्री का मतलब है एप्रोप्रिएसी, बराबर होना, सारी चीज़ें बिल्कुल टिक टाक होना. मतलब बंदे को कभी कभी डिसऑर्गेनाइज भी अच्छा लगता है, यार क्या हर चीज़ इतना ऑर्गेनाइज करते हो. लेकिन साइंस जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है. एप्रोप्रिएसी मीन्स रेलेवेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, context, demand of the examiner, wording of the examiner. तो one is symmetry and the other is asymmetry. इसके साथ a लगाओ so it become antonym. मतलब कभी हमें गड़बड़ पसंद होती है, गड़बड़, डिसऑर्डर, कियास, जिसको कियास कहते हैं. अब जब भी कोई फिलासफर, इंटेलेक्चुअल, राइटर टाइप बंदा होता है तो उसकी मेज़ देखो, कोई किताब उधर पड़ी है तो कोई पेन उधर है, तो कोई सर पाव का पता नहीं चलता. और जो गरीब खामखा मेट्रिक आम किस्म का स्टूडेंट है तो वो जी अपना मार्कर को तरीके से रखो, और जी किताब को ऐसा रखो, जी ऐसा इस करो, इस तरह करो, वाह जी बिल्कुल सीधा साधा सारा. उस गरीब के पास कोई और चीज़ होती नहीं है तो सारा दिन वो अपने मार्कर से खेलता रहता है. ओ जी मेरा मार्कर इधर गया तो मेरे नोटबुक उधर गया, तो जी अब वो कागज़ लगाता रहता है सारा दिन, कुछ और तो आता नहीं है उसको, डायग्राम बनाता है. जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं, तो उनका टेबल जो है वो कियाटिक होता है, डिसऑर्डर, कोई कागज़ उधर है तो कोई किताब उधर है, कोई पता नहीं चलता क्या है. तो वो उसको कहते हैं एसिमेट्री. तो समटाइम एसिमेट्री इज मोर ब्यूटीफुल देन सिमेट्री. मतलब तरतीब अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बंदे को कियास मज़ा देता है, डिसऑर्डर, बदनज़मी. और हॉस्टल में होते थे यूनिवर्सिटी में, तो जब बिजली चली जाती थी तो हम नारे लगाते थे जी खुशी से, ताकि आप पढ़ना नहीं पड़ेगा. वो इंसान का असल रूप फिर निकल आता है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक टुडे दैट वी हैव,
that is from grammar to composition. From parts of speech, we are now converting the parts of speech into composition. The basic purpose of language is composition, paragraph writing. ये parts of speech, types of adjectives, types of pronouns, rules, ये वो सारा ये ज़रूरी है, लेकिन असल मकसद ये है कि आप पैराग्राफ लिख सकते हैं कि नहीं. Because, please write it, paragraph is the unit of composition. Paragraph is the unit of composition. The best unit of composition is paragraph. And that is the unit of organization. Organization. जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके पास यूनिट क्या है? पैराग्राफ. अब आजकल के ज़माने में बुलेट पॉइंट्स आ गए जी, ओ तीर का निशान लगाओ, स्टार लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ कंपोजिशन इज पैराग्राफ. अभी भी ऐसे में पैराग्राफ के अलावा कोई और चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है. ओनली पैराग्राफ इज एक्सेप्टेबल एज अ यूनिट ऑफ composition in essay. करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, किसी और सब्जेक्ट में आपके पास टाइम नहीं है, आप पैराग्राफ नहीं लिख. मेरे याद है मुझे CSS या PMS के आखिरी पेपरों में, आखिरी क्वेश्चन में पैराग्राफ लिखना मुझे नहीं होता था, टाइम ही नहीं होता था, तो मैं बस वो लाइन लगाता था 1 2 3. फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, salient features, salient features, distinguishing features, important recommendations. टाइम ही नहीं होता था, आखिर 10 मिनट होते थे, पूरा क्वेश्चन रह जाता था, तो उसमें फिर पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं? तो वो फिर 1 2 3 लगा के जान छुड़ाते थे. वो भी पास हो गए, पता नहीं कैसे हो गए. लेकिन टेक्निकली द यूनिट ऑफ कंपोजिशन इज पैराग्राफ. यूनिट का क्या मतलब है? कि उससे छोटी चीज नहीं है, कि उससे छोटी चीज नहीं है, इसको कहते हैं यूनिट. यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी. मतलब जब आप लिखते हैं तो पैराग्राफ से कोई छोटी चीज नहीं है. आजकल आ गए हैं, मतलब बुलेट पॉइंट्स है, 1 2 3 है, सीरियल नंबर्स है, ये पहले नहीं होते थे. कंप्यूटर की वजह से लोग सुस्त हो गए, लेजी हो गए. इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ कौन लिखेगा? बस जान छुड़ाते जी, आउटलाइंस. तो फिर भी पैराग्राफ इज द यूनिट ऑफ कंपोजिशन. इससे छोटी चीज आपके राइटिंग में नहीं होनी चाहिए. अब लेजी लोग हैं, सुस्त है, नॉलेज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिकली फिर बुलेट पॉइंट्स और सीरियल नंबर 1 2 3 लगा के, जल्दी जल्दी लाइंस लगा के, सेंटेंसेस लगा के, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग खुद एक पूरा स्किल है, आर्ट है. आई हैव गिवन यू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन पैराग्राफ राइटिंग in which they have given you exercises also. So there are 3 main parts: topic sentence, support and conclusion. मतलब पैराग्राफ के अंदर जो है आपकी 3 चीजें होनी चाहिए: टॉपिक, सपोर्ट एंड कंक्लूजन. एक आपका एसे है, उसमें एक इंट्रोडक्शन है शुरू में, आखिर में कंक्लूजन है. यही काम आपने हर पैराग्राफ में भी करना है, बट ऑन 1 डायमेंशन ऑफ द टॉपिक. टॉपिक का एक डायमेंशन पे. तो पैराग्राफ से छोटी चीज नहीं होनी चाहिए. पैराग्राफ हैज 3 पार्ट्स: टॉपिक, सपोर्ट एंड कंक्लूजन. टॉपिक, हर पैराग्राफ का अपना टॉपिक होता है.
एक तो आपका मेन टॉपिक है, मसलन आप लिख रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये आपका टॉपिक है। तो ये तो मेन टॉपिक, बड़ा बड़ा मोटा मोटा टाइटल हो गया। तो अब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे आप गड़बड़ नहीं कर सकते, जो जहन में आ जाए जी लिख लिया, नो। आपने सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को आउटलाइंस देके हर आउटलाइन के लिए एक पैराग्राफ आपने देना है। तो एक पैराग्राफ आपने पॉवर्टी पे लिखा, एक पैराग्राफ आपने पॉपुलेशन पे लिखा, एक पैराग्राफ आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे लिखा, एक अकाउंट आपने इंपोर्ट्स पे लिखा, एक अपने पैराग्राफ आपने इंपोर्ट्स पे लिखा, एक्सपोर्ट्स पे लिखा। तो जो मेन टॉपिक है उसके आपने आउटलाइंस बना दिए और हर आउटलाइन पे आपने एक पैराग्राफ लिखा, क्योंकि हर आउटलाइन का एक अपना टॉपिक है, सब टॉपिक है, और उस टॉपिक को फिर आपने सपोर्ट करना है और फिर कंक्लूड करना है। कंक्लूजन से पहले आपने रिकमेंडेशन भी देने हैं कि जी पॉवर्टी है तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी क्यों होती है, और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमें करना चाहिए। तो ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। ये बहुत ज़रूरी है कि जब सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपका टॉपिक है, पॉवर्टी अपनी बात की, बस आप दोबारा नेक्स्ट पैराग्राफ में अपनी पॉवर्टी पे बात नहीं करनी। दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। हमसे यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो जहन में आ जाते हैं लिखते हैं, नो। अगर आपके पास पॉवर्टी पे बहुत माल है और वो एक पैराग्राफ में नहीं आता, तो फिर आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 3 लिखने हैं पॉवर्टी पे, लेकिन आपने मिक्स नहीं करना। पॉवर्टी के साथ आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को, इलिटरेसी को, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं जी एक पैराग्राफ में सारे लिख लेते हैं और फिर हर पैराग्राफ में सबको टच करते हैं, नो, दैट इज नॉट कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स कंपोज। कंपोज का मतलब है सॉलिड, ऑर्गेनाइज्ड। So if you have organized thoughts, you will be having organized composition. अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आपकी लैंग्वेज कैसे क्लियर होगी? लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग दिमाग में होती है और उसका जो रिटन फॉर्म है दैट इज कॉल्ड आउटलाइंस। आउटलाइंस इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्लीज राइट इट। Outline is the product of brainstorming. Brainstorming produces outlines. फिर आपने आउटलाइंस पे, हर आउटलाइन पे एक एक पैराग्राफ लिखना है। Now if you have any questions, so please ask. Proof reading is important. Proof reading. Before you submit, you must proof read. Is it compulsory that topic sentence should be the first sentence of a paragraph? You have 2 choices. Number 1, to combine topic sentence with transition. Number 2, first transition,
एंड नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस। अगर आपका सिर्फ एक पैराग्राफ है तो उसमें तो ट्रांजिशन नहीं है। अगर आपके 5, 6, 10, 15, 20 पैराग्राफ्स है तो आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे ट्रांजिशन करना है, ट्रांजिट करना है, आपने चेंज होना है। तो आपने जो है उसका एक देयर फोर, मोर एवर, फर्दर मोर वगैरह लगा के आपने पुराने से या कोई आइडिया वहां से लेके पुराने नेक्स्ट जो पुराना आपका पैराग्राफ है सोशियो इकोनॉमिक पे आपका टॉपिक है। पॉवर्टी आपने एक पैराग्राफ में लिखा, इन्फ्लेशन दूसरे में लिखा, तो आपका ट्रांजिशन कैसे होगा? उसको सोशियो इकोनॉमिक, अनदर इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज along with poverty, another important socio-economic problem is inflation. ये आपका ट्रांजिशन हो गया। पहले पैराग्राफ में हमने पॉवर्टी लिखी, सेकंड पैराग्राफ में आपने इन्फ्लेशन लिखा। टॉपिक आपका मेन टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद फिर अपना टॉपिक सेंटेंस उधर ट्रांजिशन के बाद लिखे। Certain little bit about concluding sentences. Now, concluding sentences of the paragraph. Nothing new. Nothing new. Conclusion is a very complicated thing. बड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि कंक्लूजन में आपने कोई नई इंफॉर्मेशन, नया डेटा, नया रिकमेंडेशन नहीं देना। प्लीज राइट इट, नथिंग न्यू इन कंक्लूजन। नथिंग न्यू इन कंक्लूजन। जो आपने ऊपर ट्रांजिशन, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्ट सेंटेंस। अच्छा, सपोर्ट में क्या होता है? सपोर्ट में एक्सप्लेनेशन, definition, examples, illustration, facts and figures, proofs, evidence, references, ये सारी चीज़ें जो है आपके किस में है? सपोर्ट में। क्योंकि मेन 3 चीज़ें हैं पैराग्राफ में, 3 मेन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं: टॉपिक, सपोर्ट, कंक्लूजन। टॉपिक, सपोर्ट, कंक्लूजन। तो टॉपिक सेंटेंस में क्या है कि आपने उस टॉपिक के बारे में लिखना है, इंट्रोड्यूस करना है उसको कि भाई ये टॉपिक पॉवर्टी के बारे में है, तो आपने वहां लिखा। अब सपोर्ट में क्या है? सपोर्ट इज द बिगर पार्ट। टॉपिक सेंटेंस एक सेंटेंस है, कंक्लूजन भी 1 या 2 सेंटेंसेस है। आपके पूरी पैराग्राफ में कम से कम 10-12 सेंटेंसेस होने चाहिए। आप किसी भी अच्छी किताब को देखें, स्टैंडर्ड बुक को, उसके सेंटेंसेस को गिने कि इस बंदे ने पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस डाले हैं। यूजुअली 8, 10, 12 सेंटेंसेस होते हैं। 15 तक भी कुछ लोग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंसेस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, मोटे मोटे है, छोटे छोटे है। लेकिन 2-3 सेंटेंसेस का कोई पैराग्राफ नहीं होता, न 20-25 का होता है। तो 8, 8, 10, 12, मे बी 15 सेंटेंसेस। सो अट्रैक्टिव में वे मीन्स हुक। आपने उसमें हुक डालना है, डेफिनेशन डालना है, तो ये अट्रैक्टिव बन जाता है। कोई यूनिक चीज़ आपने डालना है, ऐसे गली पड़ी सड़ी बातें नहीं, उसमें कोई ख़ास चीज़ हो, अट्रैक्टिव, कोई फिगर हो, कोई स्टैटिस्टिक हो, डिफिनीशन हो, कोई अजीब किस्म की बात हो। तो आपका एक सेंटेंस टॉपिक,
एक या दो कंक्लूजन, दरमियान में जो आपके पास 8-10 सेंटेंसेस है, दोज आर योर सपोर्ट सेंटेंसेस. तो सपोर्ट सेंटेंसेस इंक्लूड एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एविडेंस, रेफरेंसेस, प्रॉपर नाउन्स. किसी बंदे का नाम लिया, किसी किताब का नाम लिया, कोई डेटा शेयर किया, कोई रिसर्च शेयर किया. तो ये सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में आती है. जब आपका सपोर्ट हो जाता है, सो देन यू कम टू द कंक्लूजन. आप लिख सकते हैं कीपिंग द अबव इन व्यू, देयरफॉर. आप उसको कंक्लूड करें इन नट शेल, लेकिन हर जगह नट शेल को न लिखे. टू सम अप, टू कंक्लूड, एज अ कंक्लूजन. तो ये करके उसी चीज को जो आपने लिखा उसको दोबारा थोड़ा सा एक और सेंटेंस उसमें डाले, उसी तरह का, नई चीज उसमें ना हो. टू कंक्लूड, government and public must cooperate so that the menace of poverty is alleviated. Full stop. Government and public must cooperate so that the menace, 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 curse, problem, the menace of poverty is eradicated, exterminated. वो आपकी विकेबलरी कितने आपको आती है. वाइप्ड आउट, एमेलियोरेटेड, एज ए रिजल्ट. बिल्कुल. तो वो फिर आपका है कि आपकी बारिश किस तरह होती है आपकी विकेबलरी की. नहीं, आपने शाकिर ज़ैदी की बात सही है. जो ऐसे में आपका थीसिस स्टेटमेंट है, उसी को आप कंक्लूजन में डालते हैं. और जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, तो उसको आप डालते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन में नई चीज नहीं होनी चाहिए. हमारी मुसीबत ये क्योंकि ऑर्गेनाइज होते नहीं है, कंक्लूजन पे पहुंच के सारी चीजें याद आ जाती है. अच्छा, वो तो मैंने नहीं कहा, ये तो मैंने नहीं कहा, तो नई नई चीज उधर डाल लेते हैं. खामोश रहो, नई चीज मत डालो. एग्जामिनर डजंट लाइक इट. कंक्लूजन में एग्जामिनर को नई चीज पसंद नहीं है. नई चीज आप पहले लिखो, बाद में याद आ गया, टाइम नहीं है. हाँ, ओवर राइटिंग वगैरह जो है पेन वाला बहुत बुरा लगता है. मुझे अपना राइटिंग याद है कि कोई ई आई होता था, तो ई को आई करता था, ऊपर आई लगाता था और डॉट, ताकि पता न चले. मतलब कोई जी एफ का होता तो जी को थोड़ा सा करके एफ वगैरह करा के. लेकिन ये नहीं कि बड़े बड़े ऊपर आपने इसमें गुलखाने बनाए हैं कि जी क्रॉस लगाया है, या पूरा आपने चेंज किया उसका स्ट्रक्चर. तो उस तरह की प्रूफ रीडिंग नहीं. खामोश हो जाओ, चांस पे छोड़ दो, हो सकता है वो देगी न ले. अगर आप इसमें बड़े बड़े लाइन लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, टू सम अप, इन सम अप नहीं होता, टू सम अप. तो मतलब वो एक इंटेलिजेंट बंदा जो होता है, फिर वो मौका की मुनासिबत से देखता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं. आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो स्पेलिंग को अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं तो करो. अगर बिल्कुल ही गलत है और उसको क्रॉस करना है तो मत करो, छोड़ दो. पेन वाले में, टाइपिंग में तो इजी होता है, उसको फिर एडिट करो, डिलीट करो, दोबारा लिखो. तो ये सारे इंटेलिजेंट गेम्स होते हैं. एग्जाम में इतना भी फारग नहीं होता कि एक एक चीज को पढ़े. कभी कभी हम काउंटर प्रोडक्टिव काम करते हैं. काउंटर प्रोडक्टिव, आ बेल मुझे मार, खुद इतने वो बन जाते हैं कि जी मैं प्रूफ रीडिंग करता हूँ एक एक चीज़ को. तो कहते हैं यार ये क्या पागल है, डिसऑर्गेनाइज बंदा है.
पहले से उसको एहसास नहीं होता था, आखिरी वक्त में उसको याद आ गया। तो अब इसका क्या, आज मैंने सेफ मैगजीन में एक आर्टिकल शेयर किया है कि वाई वी आर लीविंग थिंग्स टू द लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट फॉर एड्रेनलिन। ये बहुत फजूल चीज़ है साइंटिफिकली। एड्रेनलिन हार्मोन, हम आखिर में गर्म हो जाते हैं। ओ जी मेरा तो परसों एग्जाम है, हो जी क्या होगा, हो जी वाह किताब ले आओ जी, गूगल ले आओ, सेफ में देखो, ये करो वो करो। तो ये जो वहशत है, ये जो एड्रेनलिन आपका एनर्जी लेवल है, इसको पहले से जगा दो, 1 महीना पहले। ये ह्यूमन नेचर की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हमारा एड्रेनलिन जो है, हमारे हार्मोन जो है, वो हमें जगाते नहीं, हम नहीं करते काम, सुस्त पड़ जाते, आखिरी मोमेंट का इंतजार करते हैं जी, अच्छा नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम है, फिर हम एक्टिव हो जाते हैं। अगर वही एक्टिविटी आप 10 महीने पहले से दिखाना शुरू करें तो क्या होगा। तो चीजों को आखिरी मोमेंट पे मत चौड़ा करें कि जी मैं दोबारा देखूंगा, प्रूफ रीडिंग करूंगा, फिर ठीक करूंगा। कामयाब लोग जो होते हैं, लीडर टाइप लोग जो होते हैं, वो इस तरह नहीं करते। अगर आपके साथ ये मामला होता है तो अपनी बॉडी को चेंज करो। बॉडी चेंज का मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पाँव काटो, मतलब कि अपने हार्मोनल सिस्टम को चेंज करो। ये सही है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, हार्मोन्स की ज़रूरत है। जो लोग एडल्ट है या जिनकी शादियां है या जो भी है, जो कार्रवाई शरवाई करते हैं, तो उनको पता होता है कि यार किस तरह ये बंदा एक्टिव हो जाता है। आपके हार्मोन्स ही नहीं है, बस मुरझाए है, बस सारा जो है ना आपने वो अपना टंग निकाला है, एवी भैंस की तरह पड़े हो, तो तुम्हारा क्या होगा तुमसे। भैंस को तो जगाना पड़ता है, उठो जी उठो उठो उठो, टाइम आ गया है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है कि हम एड्रेनलिन या हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन या जो भी है, स्टेरॉइड्स वगैरह, इसके बगैर इंसानी बॉडी काम ही नहीं करता। क्यों हम एग्जाम के करीब तेज हो जाते हैं। वही इंसान होता है, वही दिमाग, वही हाथ, वही आंखें, लेकिन वही बंदा फिर सही काम करता है एग्जाम के करीब। एग्जाम से पहले एम ही होता है। तो ये एक सीक्रेट है कि भाई अपने एड्रेनलिन को हर वक्त एक्टिव रखो। किसी बाहर के स्टिमुलेटर का वेट ना करो कि जी कोई मुझे स्टिमुलेट करेगा, मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, फिर मैं एक्टिव हो जाऊंगा। If I have not answered your question, so you can ask again. Asadullah, can concluding sentence of one paragraph be connected to the topic sentence of other paragraph through words? तो उसका ये है कि जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, दैट इज पार्ट ऑफ द एसे, वो कोई एसे से बाहर नहीं है, या आपके आंसर्स है, आप एक टॉपिक का आंसर लिख रहे हैं, तो वो जो आंसर है उसकी 10-15 पैराग्राफ्स है। तो टॉपिक तो आपका एक है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हर पैराग्राफ कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग दुनिया नहीं है, वो पहले पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए। सो यस, यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग बैड इन इट असदुल्ला। थ्रू वर्ड्स, थ्रू लैंग्वेज यू हैव टू कनेक्ट। एज आई सेड, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा मेन टॉपिक है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है या इस पे ऐसे लिखना है। ऐसे का ये कि इसमें आपने ईडियम्स डालने हैं, दूसरे आंसर में आपने सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर डालने हैं। ये फर्क है, बाकी चीज एक है। तो वहां आपने लिखा कि along with poverty, inflation is another big issue। तो आपका पिछला पैराग्राफ पॉवर्टी पे था, अब ये इन्फ्लेशन पे है। आपने इस पैराग्राफ को पुराने पैराग्राफ के साथ मिला दिया, क्योंकि दोनों जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। सुबहान के इस कंक्लूजन,
है ना, ये गलत है ना यार। आप लोगों की अंग्रेजी जो है, मैं पूरा पैराग्राफ पे मैंने 1 घंटा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो जब तक सेंटेंसेस ठीक नहीं होते, ग्रामर ठीक नहीं होता, तो ग्रामर कंपोजिशन कहाँ से आएगा? जब आपने इज लिखा तो फिर शुड मत लिखो, या शुड से शुरू करो इस सेंटेंस को, क्योंकि दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, एक्सिलरी वर्ब्स है। या शुड से शुरू करो या इज से शुरू करो। शुड कंक्लूजन बी वोमिट आउट ऑफ टॉपिक। ओमिटेड तो नहीं है, वोमिट का क्या मतलब है? वोमिट आउट और ओमिटेड ऑफ टॉपिक सेंटेंस इज कंक्लूजन शुड बी ओमिटेड आउट ऑफ टॉपिक सेंटेंस। कोई समझ नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन की, प्लीज रीफ्रेज इट। क्या मतलब है आपका? इन कंक्लूजन शुड नॉट एड न्यू थिंग्स। यस, एड्रेनलिन, प्लीज राइट इन इंग्लिश। मैं उर्दू बोल सकता हूं, आप जो है कोशिश करें कि टूटी फूटी अंग्रेजी लिखे। आपकी जो कमेंट है ये भी आपका कंपोजिशन है, ये भी आपका प्रैक्टिस है। तरीका नहीं है बढ़ाने का, करते हैं लोग। मेडिसिन भी लेते। मेरी ज़िंदगी मैंने कभी नींद की वो गोली ली है? नेवर इन माई लाइफ, नेवर एवर, कि भाई मुझे नींद के लिए गोली चाहिए, ट्रैंक्विलाइजर, न किसी और चीज़ के लिए। लोग करते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की गोलियां अवेलेबल है, तबाही है। आपके अंदर बॉडी में इतना नशा होना चाहिए कि आपको बाहर के नशे की कोई ज़रूरत ही ना हो। हाँ, फूड ज़रूरी है, फूड, ठीक है ना, फूड बड़ा ज़रूरी है। अब मैंने अपने ड्राई फ्रूट देखे किधर है। फूड इज़ इंपॉर्टेंट, फूड, फ्रूट, ये वो। मैंने देखे नए यंग लोग होते वियाग्रा लेते, तबाही करते, अपनी सिस्टम को बिल्कुल नेचुरल सिस्टम का बेड़ा कर करते हैं। सो नो एक्सटर्नल मेडिसिन। कोशिश करके कोई मेडिसिन न ले। फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन। व्हेन फूड इज नॉट योर मेडिसिन, देन मेडिसिन इज योर फूड। व्हेन फूड इज नॉट योर मेडिसिन, मेडिसिन इज योर फूड। अगर खाना आपकी दवाई नहीं है, तो फिर आपकी दवाई क्या होगा? खाना। अब दवाई जो है खाने की तरह खाओगे। आपने देखा होगा लोग इतने इतने बड़े बड़े बंडल होते हैं, ओ जी ये कागज़ निकालो तो वो निकालो तो ये निकालो, आधा घंटा तो इसमें लगता है। ओ जी अभी मेरा इसका खाने का टाइम हो गया, तो अभी सुबह है तो शाम है, तो खाने से पहले तो खाने के बाद, तो सुर्ख रंग की गोली तो सफ़ेद रंग की गोली, तो ये तो वो, सारा बकवास। ज़िंदगी अजाब हो जाती है। सो नो मेडिसिन्स। आपके अंदर बॉडी में जो है सिस्टम मौजूद है, हर चीज़ का सिस्टम मौजूद है नेचुरल तरीके से। दैट इज़ द बेस्ट। मजबूरी है, डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, सो दैट इज़ अनदर थिंग। When writing outline, do I need to plan every sentence of the paragraph as well? When writing outline, do I need to plan every sentence of the paragraph as well? Yes. Composition, paragraph. We will discuss, is concluding sentence include recommendations? No. No. Recommendation is something new. Recommendation is part of support. Recommendation, illustration, examples, references, evidence, all these are part of the support system. In current affairs, will using idiom make it super? Yes. शाकिर जैदी, idiom बहुत कम, पूरे आंसर में जो है एक idiom डाला तो ठीक है। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, एविडेंस, रेफरेंसेस, एक दो डालने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हाउ शुड आई प्रायोरिटाइज ऑर्डर एंड शुड आई प्रीफर? ऑर्डर शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑर्डर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। लेट मी rephrase it. Should conclusion be a replica of the topic sentence in a paragraph? Should conclusion be a replica?
नो 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 नो, रीफ्रेज। फिर फ़र्क क्या पड़, तो अब अपनी कॉपी पेस्ट किया। कंक्लूजन जो है वो आपका टॉपिक सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन टॉपिक सेंटेंस नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता। उसको मिक्स करो, सपोर्ट प्लस टॉपिक, या उसकी वर्डिंग चेंज करो, तरतीब चेंज करो। एग्जैक्ट रेप्लिका नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हाँ, पैराग्राफ इज लाइक अ मिनी एसे। Yeah. So weed, cocaine, drugs, no need. कभी कभी बंदा कर लेते हैं जस्ट टू हैव अ टेस्ट, लेकिन मेरे अंदर तो खुद इतना बड़ा नशा है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नेचुरल, बायोलॉजिकल। मैं तो क्लास में भी बड़ी मुश्किल से इस तरह बैठता हूँ, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं क्या क्या करूँ। तो ये नेचुरल आप में अंदर होना चाहिए, इनहेरेंट, इनसाइड, नेचुरल, बाहर की चीज़ नहीं। मैं आप लोगों से एज में कितना बड़ा हूँ, लेकिन अभी मुझे पहाड़ पे चढ़ाओ तो मैं 1 सेकंड में चढ़ जाता हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोमैटिक साइकोलॉजी, आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। सो नो आर्टिफिशियलिटी, मसनूई काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो है, ये मेडिसिन नहीं थे, ये डॉक्टर्स नहीं थे। ये तो अभी 50-100 साल की बात है। पहले लोग क्या करते थे? जंगलों में रहते थे। अब हम ये नहीं कहते कि साइंस ठीक नहीं है या मेडिसिन ठीक नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन नेचुरलनेस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचर। नेचर से बेहतर कोई चीज नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल राइट कोटेशन बिफोर इंट्रोडक्शन, ये गलत है। नट ऑन द CSS पैटर्न। आम बच्चे में प्राइमरी क्लास, जी लप्पी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो वो ठीक है उस तरह, प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास। लेकिन CSS लेवल पे कोटेशन को आप बॉडी पैराग्राफ में लिखे, बड़ा अजीब लगता है, बच्चे लगते हैं बंदे के। कोटेशन से शुरू किया जी, वही टिपिकल मिसाली, उसमें कोई गलती नहीं है, ना कोई क्राइम है। क्राइम नहीं है कोटेशन से स्टार्ट लेकर, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। आप CSS के कैंडिडेट हैं, आपके पास अपने इतने आइडियाज होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को इंप्रेस करे शुरू में। आखिर में फिर कोटेशन डालो, दरमियान में डालो, आखिर का मतलब है बॉडी पैराग्राफ्स में। Okay, so now quickly the time is over. We will continue. So please, tomorrow there will be no class, no exam. Exam will be on 3rd of May, but we will continue our writing, and also I will be calling you people on WhatsApp. We will coordinate, so that these days I want to be in touch with you personally. We will coordinate timing. If anybody wants to talk to me on call, you can send me a WhatsApp message, and I will be also randomly sending you messages so that we can coordinate how can we absorb, digest so much knowledge. मतलब 5000 तो आपके एडजेक्टिव्स है, 500-600 तो मैंने आपको ईडियम्स दिए, और साथ इस पे प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे इतने ग्रामर, सेंटेंसेस, एक्सरसाइजेस। तो आप इसको एब्जॉर्ब करना है, आराम के साथ डाइजेस्ट करना है। डिलीवरी हो गई तो अभी 4-5-6 दिन जो है आप इसको आराम से पढ़ें। तो अपने जो हमारा डेली का रूटीन है उसको पूरा करने के लिए, एनीबडी कैन टेल मी, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, व्हाट डज इट मीन? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। If you have any question, you can ask in Safe 2 or send me WhatsApp message. Now let us check some of our idioms. By the skin of your teeth.
Please write the idiom and its meaning. Green tea is highly essential. Green tea. Make it part of your daily routine. Green tea of good quality. कोई काफिर मिल जाए तो उससे लेना. पाकिस्तानी तो बहुत जहर मिलाते हैं इसमें. So by the skin of your teeth, by the skin of your teeth, by narrow margin. Barely. So Amara Mukhtar, yes, correct. So Amara got 1 mark. Yes, definition you can start. By the skin of your teeth means barely, just barely. तकरीबन, मामूली हद. He has a bigger fish to fry. Beautiful. ये जो मैंने आज आपको दिया है idioms वाला लिस्ट तबाही है. मुझे इतना मजा आया उसको पढ़ के, नावल की तरह उसको बंदे उसको पढ़ना चाहते हैं. बहुत खूबसूरत कलेक्शन है. Excellent collection. So he has bigger fish to fry. So Neelam got this mark. He has bigger fish to fry means he is a CSS candidate. He is not joining us in daily discussions because he has a bigger fish to fry. वो ये छोटे मोटे फाटकों पे नहीं रुकता, वो बड़े बड़े काम करता है. ये जो अभी हम कर रहे हैं छोटे मोटे बातें, गपशप, ये वो, इन चीज़ों के लिए उसके पास टाइम नहीं है. वो बड़ा काम करता है. So he has bigger fish to fry. Beautiful idioms. It takes one to know one. Lovely. It takes one to know one. इस लिंक पे जो मैंने आपको idioms दिए है, हर idiom के अंदर एक बहुत बड़ा सबक है. Big lesson. These are like proverbs. It takes one to know one. Hurry up, time is too short. It takes one to know one. So Asadullah, I wish to give you a mark, but I saw the mark of Neelam first. So it takes one to know one means a bad person knows a bad person. Especially it is irony. अगर कोई आपको बुरा कहे कि जी तुम बड़े बुरे हो, तुम ये हो वो हो, तो ये उसका जवाब होता है कि it takes one to know one. तुम खुद बुरे हो, इस वजह से मुझे बुरे कहते हो, बुरा कहते हो. मतलब आपको बुराई का पता है, इस वजह से आप मुझे बुरा कहते हो. ओके, नेक्स्ट. लीव एंड लर्न. लीव एंड लर्न. ब्यूटिफुल idiom. Lovely. So I think Neelam got second mark. Leave and learn. What does it mean? Anybody?
Live and learn. Chaudhry Sikandar. Yes. Correct. Live and learn means I made a mistake. Live and learn. I made a mistake. मुझसे गलती हो गई. Live and learn. क्या करें? Man is to err. इंसान से गलतियां होती है, अब क्या करूं? जिंदगी है. सीख गया, मैं अपना सबक सीख गया. Live and learn. Okay, next. On thin ice. On thin ice. THIN. On thin ice. So Amara got second mark. On probation. On thin ice means you have the last chance. If you make another mistake, I will punish you. Because you are on probation. Put something on ice. Put something on ice. There is another way how to make idioms, and that is topic wise. Like how many idioms are there from ice? Ice. So the second idiom is put something on ice. Put something on ice. Put project on hold. Exactly. So Amara got third mark. Put something on ice means on hold. Keep something on hold. Stop for some time. Okay, next one is put some, okay, spill the beans. Spill the beans. Spill the beans. So Neelam got it correct. 3 marks. Neelam and Amara both got 3 marks. Sikandar 1. Spill the beans means give away a secret. The elephant in the big room. 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 People ignore it. So Amara, I saw your comment first, but Neelam answer is correct. More correct, you can say. A problem, but the people are a big problem, but the people are ignoring it. The elephant in the big room. For example, religious extremism is the elephant in the big room. It's a big problem. Mullacracy is a big problem, but we are ignoring it. Leave it. Don't touch it. And the next one is, there is a method to his madness. I love this idiom because it is my idiom. My idiom means it is for me. There is a method to his madness. I love it. There is a method to his madness.
So ladies and gentlemen, thank you for your participation. See you now more in individual attention program, preparing for the monthly exams, covering, revising everything, safe too. Daily writing will continue. And Neelam Akbar, method to madness, even in chaos there is structure. There is a method, it's crazy but actually clever. So up to some extent Neelam is correct, but Amar is also correct. So both of them, once again, they have got good position. Big hand for them. Applaud. And there is a method to his madness. Means sometimes you people see me in Facebook, I'm touching here, there, asking people different questions, criticizing them. People think that I am crazy. I am not crazy, but I appear to be crazy just to challenge their dogmas, their belief system. So that is my philosophical method, because there is a method to my madness. I am mad, but I am mad with a method. I am not mad psychologically, I am okay. But people think that I am crazy, but I am not crazy. So there is a method to my madness. I challenge people just to stir them, just to change the. Like today, Ziauddin Yusufzai, father of Malala Yousafzai, my friend, he recommended a book. Thousands of people. Oh, Siddhartha is the name of the book. Excellent book. Thank you. MashaAllah. Very good. Nice. This, that. Naeem Khan comes and says, this book is a total disaster. This book is against knowledge, against education. This book is for emotionality. Don't recommend this book. So everybody, thousands of people say it's a great book. Naeem Khan said it is a bad book. Why? There is a method to my madness. I do not go with the flow. सब कह रहे जी अल्लाह जी और मैं भी कहूँ हाँ, तो मेरा किधर नाम मेरा तो बनेगा नहीं जब तक मैं मुखालिफत नहीं करता. अपोजिशन विद आर्गूमेंट, ये भी नहीं कि हाँ मखा जो है ना हर चीज़ की मुखालिफत करना. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. So all the best guys, see you now in essay classroom. We will be practicing essay writing, paragraph writing there. Yeah. So I have a method to my craziness. So see you soon in the new course. Plus, yeah, have your distinction. Do not say nice, good, very good, this, that. No. Read it. Think over it. Critically examine it. Maybe it is something not that much praiseworthy what you were thinking. And this way you will get attention. Otherwise, you are one among many. People do not read your comment. ये जो comment है nice, good, ये वो कोई पढ़ता नहीं है उसको. Nobody reads it. अगर कोई काम की चीज़ है तो लोग कहते हैं यार ये कोई चीज़ है, कोई बंदा आ गया है.